राष्ट्र यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा असम गणपति नगर कार्यक्रम के प्रकल्प के पवित्र भूमि पूजन के इस बड़े अवसर पर आप सभी महानुभावों करें। असम की परंपरा सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक गामोसा हमारी संस्कृति और आदर का विशिष्ट प्रतीक खड़ा है। सालों से कहा जो दौड़ के निर्माण और एकता के मूल सूत्रधार है उनकी प्रतिमा भी भेंट की जा रही है। विशेषता है कि उन्होंने असम के पवित्र धरती में नामरूप के टीकापुर पहला स्थायी राजधानी बनाया था। और साथ ही असम में हस्तशिल्प कला का प्रतीक यह हस्त निर्मित गामोसा जिस पर सुनहरे धागों से माननीय प्रधानमंत्री जी की आकृति बुनी गई है। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ बंदरगाह नौपरिवहन एवं जलमार्ग के मामले केंद्रीय मंत्री श्री সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব। ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি। আৰু মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে মিলি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগে। সেইবাবে মই সকলোকে নিজৰ স্থানত থিয় হৈ হাত তালি মাৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। আমি এইখিনি সকলো সময়তে মনত ৰাখিব লাগিব যাৰ ফলত লাখ লাখ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে আমাৰ নিবনুৱা সংস্থাপন পাব। আৰু সেইবাবে সেই লক্ষ্যৰে এই সাৰ কাৰখানা নিৰ্মাণৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত মই এই কথাটোও কম, মই স্থানীয় সাংসদ হিচাপে গৌৰৱান্বিত। কাৰণ মোৰ এতিয়াও মনত আছে 2006 চনত যেতিয়া UPA গভৰ্ণমেণ্ট আছিল, ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল। আৰু সেই সময়ত তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এই সাৰ কাৰখানা তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিব, কিন্তু কংগ্ৰেছে সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰিলে। গতিকে এই কংগ্ৰেছক আপোনালোকে কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। এই কংগ্ৰেছে যেনেধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিলে অসমৰ খেতিয়কক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেতিয়কক, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে তেখেতসকলক হেঁচি দিবই, দিবনে নাই, দিবনে নাই। গতিকে আজি উপখনত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ অসম চৰকাৰে এই উদ্যোগটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দেখি তৎপৰতা দেখুৱালে, তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে আমি সকলোৱে তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব। এইখিনি भारत माता की, भारत माता की। कृतज्ञता है। अब मैं असम के माननीय এইফালে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি
আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছিলে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক স্বীকৃতি দিয়া নাছিল। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু আবেগৰ দিন। মই অসমবাসীৰ হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ এই বিশাল হৃদয়ৰ বাবে আকৌ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত মই যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলো, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাইজে আমাক এটা কথাই কৈছিলে যে নামৰূপ মৃতপ্ৰায় হৈ গৈছে, নামৰূপক জীৱন্ত কৰিব লাগে, প্ৰাণৱন্ত কৰিব লাগে। নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ 4ৰ্থ ইউনিট আৰম্ভ কৰিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি নামৰূপৰ ৰাইজৰ আশা আৰু আকাংক্ষাৰ কথা অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু আমি তেখেতক কৈছিলোঁ যে 5 লাখ মেট্ৰিক টনৰ এটা ইউৰিয়া উৎপাদনৰ প্ৰকল্প ভাৰত চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তাক আপুনি অনুমোদন দিব লাগে। আমি বিচাৰিছিলোঁ 5 লাখ টকা ইয়াতে ব্যয় কৰা হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আবেগৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰকো এই সমস্ত প্ৰকল্প 40% অংশীদাৰ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ দিছে। ইয়াৰ আগতে নুমলীগড় শোধানাগাৰতো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ অধিকাৰ আছে আৰু সেয়েহে আজি ইয়াত আৰম্ভ কৰা সাৰ কাৰখানাই হওক, নুমলীগড় শোধানাগাৰে হওক, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ জনগণৰ ইয়াতে অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, যোৱা কেইবাটাও প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক উপহাৰ দিছে। ডিগবৈ শোধানাগাৰ আমাক 1 মেট্ৰিক টন ক্ৰুড যাতে আমি শোধন কৰিব পাৰোঁ 760 কোটি অভিনন্দন জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আশ্বাস দিছো, আমি আপোনাৰ এই অৱদানক আমি কেতিয়াও নাপাহৰো। আমি কেতিয়াও নাপাহৰো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী থকাৰ সময়তে আমাৰ জাতিটোৰ নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল। আমি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে সদায় আপোনাক মনত ৰাখিম। মই নামৰূপ উজনি ৰাইজক অভিনন্দন জনাম যে আমাৰ সপোনবিলাক আজি পূৰণ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। ডিব্ৰুগড় অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হোৱাৰ পথত আজি নামৰূপৰ ইউৰিয়া কাৰখানা, আমাৰ ডিগবৈ তেল শোধানাগাৰৰ কেপাচিটি ইনক্ৰিজ, আমি যিমানবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, আজি প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আপোনালোকে অনাগত দিনত আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে অসমৰ উন্নয়নৰ এই অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাত আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিবনে নাই আপোনালোকে? সকলোৱে কৰিবনে নাই? সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিবনে নাই? সকলো নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। कृपा करें।
असम। मेहनत, साहस और समृद्ध विरासत की धरती, जहां इतिहास भी गौरवशाली है और भविष्य भी नई संभावनाओं से भरा हुआ। आज असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, रोजगार और कृषि, हर क्षेत्र में विकास की नई गति दिखाई दे रही है। इसी विकास यात्रा में नामरू असम की औद्योगिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक समय नामरू को असम का फर्टिलाइजर पावर हाउस कहा जाता था, जहां नामरू फर्टिलाइजर प्लांट 1 और प्लांट 2 ने राज्य की कृषि को मजबूती दी और अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। लेकिन समय के साथ तकनीक पुरानी हुई और इन प्लांट्स को बंद करना पड़ा। ये नामरू और असम दोनों के लिए एक कठिन दौर था। असम के लोग तैयार थे, बस उद्योग को नई ताकत और नई तकनीक की जरूरत थी। इसी निर्णायक क्षण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का स्पष्ट विजन देश के सामने रखा, जिसका एक अहम लक्ष्य है भारत को उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। केन्या से आपना लोकलय मोर आंतरिक मरम आरो श्रद्धा राजिছো असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी और यहीं के आपके प्रतिनिधि, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे सभी भाई और बहनों, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा मुझे वहां बाहर दिखते हैं। सोलुंग सुकाफा और महावीर लसित बोरफुकन जैसे वीरों की ये धरती, भीमबर देवरी, शहीद कुशल कुंवर, मोरान राजा बड़ोसा, मालती में इंदिरा नीरी, स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह और वीरांगना सती साधने की ये भूमि, मैं उजली असम की इस महान मिट्टी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। के दौर में थी विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर, उसकी मैन्युफैक्चर, मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को
इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए भी बधाई देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही टी कम्युनिटी के भाई बहनों को जमीन के अधिकार नहीं मिलने दिए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए और गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। और मैं तो चाय वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाई बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते जो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टिकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा, बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है, आपका ये प्यार यही मेरी पूरी है। और इसीलिए पल पल आपके लिए जीने का मुझे आनंद आता है। विकसित भारत निर्माण में पूर्वी भारत की, हमारे नॉर्थ ईस्ट की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वंदे 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 वंदे। आपका तेजी सीमाध्यक्ष वाली उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आपका मूल्यवान संकल्प को एक नई ऊर्जा और दिशा भी दी है। आज का यह दिन
असम के औद्योगिक एवं कृषि परिदृश्य में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदा स्मरणीय रहेगा। इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हम आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आज की इस भव्य सभा का अभी हम समापन